Okay, so today we will discuss regarding the media query. So anyone have idea what is media query? Anyone know about this one? We use for the responsive purpose. Okay, so suppose that you will see that in when you opening any website in your laptop view. Okay, so that time maybe navigation bar will be on the top. One common example. So just to go to W3 school. Okay, so here what we getting? These all navigation bar on the top. Why? Because screen size is large so that we can get proper space to open our website. But suppose just think if this will be the same thing we going to open in the mobile view. Okay, in that case what will happen? A space is less. But when a space is less, how you will adjust these all navigation bar in the mobile view? So just to go to the mobile view and see the differences, what a difference we getting. So this is, so how to check response means that mobile view, click here, don't keep on responsive. Okay, you have to select any mobile phone, Samsung Galaxy S. So now what you are observing, so all the navigation bar got hidden, but here we got a triple line. When you clicking on this triple line, what happened? We got all the navigation bar here. Means this become not the home page. This is for the different like HTML tutorial content. Okay, so but where is that all navigation bar? So maybe I think in menu. No, okay. Here it giving the different type of navigation bar actually. But when you clicking on the home, suppose that, then we can go on home. From there we can came back up to, means up to that page. Means on the main screen, when we suppose when we going on HTML page, so on HTML page, you can't get these all JavaScript, Python or these things. But how that happen? That's not the matter where it gone or what happened. No. But what happened when we switched to mobile device? What happened when we switched back to the laptop device? Laptop in the sense bigger screen. So when we are on the bigger screen side, that time we're getting these all navigation bar because the space is enough. But when we going in the mobile device, that time what is happening? Those sections are not available on the top as it is available in the mobile device. You can realize here. You can see those sections is not coming here. But why this happening? Because due to the space. Because in mobile we have less space, but when we moving in the desktop view, we have enough space, sufficient space to display any content. So we have to, what we have to take care while designing the website, that whatever necessary things, important area, okay, for the website, those have to visible always. Okay, and whatever is not necessary means that will be necessary only for few seconds. So those should be hidden because otherwise that will utilize your space. जो आपका जरूरत का ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे क्या करते हैं हम लोग पूरे वेबसाइट पे डिस्प्ले करके रखेंगे, बट जो ज्यादा जरूरत नहीं है जस्ट कुछ सेकंड के लिए हमें चाहिए, जैसे नेविगेशन बार था, वो क्या है जब आप स्विच कर रहे हैं तभी जरूरत पड़ेगा, बाकी टाइम में उसका जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए हम स्पेस देकर फालतू में क्यों बर्बाद करेंगे अपना एरिया, ऑलरेडी हमारे पास स्पेस जो है मोबाइल डिवाइस में क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, तो हम उसको स्पेस देकर वो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए क्या होता है वो हम सोचते हैं क्या कि कौन ऐसा चीज है जिसे हमें हमेशा रखना चाहिए और किसे हम हाइड कर दें। तो हाइड भी करने का मतलब क्या हुआ, उसे कुछ स्पेसिफिक मीन्स किसी भी इंडिकेशन से हम उसे क्या होगा हम उसे शो कर सकते हैं। लाइक नेविगेशन बार ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नेविगेशन बार यहाँ दिख रहा है, पर जब आप फिर से इसे क्लिक कीजिएगा ये आपका गायब हो गया, क्योंकि हमें उसका जरूरत ही नहीं है उतना। समझ में आया? तो लेकिन ये एक्चुअली स्विच जो हो रहा है वो डिवाइस, वो कोई तो बताएगा उसे कि हाँ आपका अभी डिवाइस छोटा हो गया है या डिवाइस बड़ा हो गया है, तब उस टाइम आप हाइड हो रहे हैं या शो हो रहे हैं, उसे पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो उसे पता चलने के लिए क्या है, तो वही है मीडिया क्वेरी। मीन्स मीडिया क्वेरी की हेल्प से क्या हो रहा है कि आपके डिवाइस का स्क्रीन साइज को ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, कितना पिक्सल स्क्रीन साइज चल रहा है,
और उसके अनुसार उसके अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस लिख रहे हैं तो वो आपका हाइड या शो होगा, वो मीन्स उसके अनुसार वो स्विच करेगा। समझ में आ गया मीडिया क्वेरी होता क्या है? तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, मीडिया क्वेरी लिखते कैसे हैं? तो एट द रेट मीडिया यहाँ लगाना होगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे हो गया नॉट ओनली, ये सब तो प्रॉपर्टी हो गया अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, मीडिया टाइप एंड एक्सप्रेशन, फिर सीएसएस कोड, उसे इग्नोर कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ पहले। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जस्ट एक नॉर्मल पैराग्राफ है, कुछ नहीं। बॉडी पे क्या है, बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। यहाँ पे फिर आया एट द रेट मीडिया, ठीक है। स्क्रीन दिया हुआ है एंड मिनिमम विड्थ क्या होना चाहिए स्क्रीन का, 480 पिक्सल, ठीक है। जब अगर ये 480 पिक्सल होता है तब ये आपका CSS जो है नीचे जो लिखा हुआ है बॉडी पे फिर से CSS, ये आपका इफेक्टिव हो जाएगा। हम यहाँ पे बॉडी देने का मतलब क्या हो रहा है, क्या पास कर रहे हैं यहाँ पर? अगर हम बॉडी दे रहे हैं या फिर H1 पे दे रहे हैं या फिर P पे दे रहे हैं तो आखिर वो हो क्या रहा है? ये क्या है H1? टैग क्या है? टैग है। टैग को कॉमन नेम टैग क्या बोलते हैं? सिंपल सिलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर मीन्स सेलेक्टर हो गया। इन द सेंस, इन द सेंस क्या हो रहा है, हमें मीडिया के अंदर हमें सेलेक्टर पास करना है। समझ में आ गया? जो भी मीडिया रहेगा वहां पे हमें क्या करना पड़ रहा है, मीडिया प्लस हमें कितने डिवाइस पे चलना है, स्क्रीन साइज देने के बाद हमें उसके अंदर सेलेक्टर का CSS पास करना होगा पूरा। ये क्या करना है, मल्टीपल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक पास कर सकते हैं, नहीं, मल्टीपल जितना मन है उतना कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अभी क्या है, बॉडी पे जा रहा है, हम चाहें तो H1 पे कर सकते हैं, P पे कर सकते हैं, जितना देना है मल्टीपल वन टाइम पास कर सकते हैं। चलिए रन करते हैं पेज को। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या है आपको, जस्ट इसको चेंज करते हैं डिवाइस। क्या गया, चलिए कोई भी ले लेते हैं। एक सेकंड, कुछ गलत काम कर रहा है ये। बॉडी हो गया, मोबाइल पे चलिए, कितना 480 पिक्सल देखते हैं यहाँ से। मिनिमम मिनिमम 480। ओके हाँ सही था। इसीलिए मिनिमम 480, मीन को हम मैक्स कर देते हैं। अब देखिए जब आपका यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बिट्स कितना है 480 पिक्सल, मीन्स बाय डिफॉल्ट हमें ये कलर आ रहा है पिंक है। जब आपका ये साइज मैच कर जाएगा, इन द सेंस जब आपका मैक्स बिट 480 पिक्सल मैच करेगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर आपका स्विच कर जाएगा। जाइए रेड्यूस कीजिए साइज को,
मैक्स विड्थ आएगा। एक सेकंड, इसका सीएसएस पे काम कर रहा है क्या? कैचे में यहाँ पे ही ये गलत नहीं, यहाँ तो बॉडी ठीक है। 1 सेकंड, इंस्पेक्ट। बैकग्राउंड कलर पिंक, बट वो पिंक आ नहीं रहा है। The media query will appear if the media type and the viewport is 480 pixel। ठीक, तो एक सेकंड, पर क्या हो रहा है? CSS यहाँ तो ठीक है। मैक्स विड्थ 1 सेकंड, डेटा है क्या? नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है शायद। करेक्ट, चलिए। एक सेकंड, अब देखिए, viewport एक्चुअली मिसिंग था, इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, पहले बाय डिफॉल्ट बॉडी का कलर क्या हो रहा है आपको, 480 पिक्सल। अभी हमारे पास बॉडी का कलर क्या है, ग्रीन कलर दे रहा है। हम लोग स्क्रीन दूसरे पे जाते हैं, मीन्स हम साइज को रिड्यूस करते हैं। अब क्या हुआ, आपका स्क्रीन का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो गया। बट चेंज कब हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे है क्या, मीन बिट इसका कितना होना चाहिए, 480 पिक्सल, कम से कम 480, इससे ज्यादा जितना हो जाए। अभी हमारे पास बिट क्या है, 297 है, करेक्ट। इसे हम लोग 500 कर देते हैं। अभी क्या हुआ, आपका चेंज हो गया। ये कैसे हुआ, जब हम मीडिया क्वेरी अगर ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि स्क्रीन का साइज ऑटो डिटेक्ट करके कि कितना साइज है, और उसके अनुसार वो क्या करेगा, कलर को चेंज कर लेगा। उसके अनुसार जो भी हम सीएसएस यहाँ पास करेंगे वो हाइड या शो हो जाएगा। सपोज आप यहाँ पर 2-3 रेजोल्यूशन लगाना चाह रहे हैं, लाइक मीन विड्थ कितना है, 480 है। हम लोग क्या कर देते हैं, मीन विड्थ 550, और 550 पे इसका कलर जो है रेड ले लिए। ठीक है, देखते हैं।
है 550। चलिए इसको हम 550 पे ले जाते हैं। चेंज हो गया, मतलब समझ में आ रहा है। ये मीडिया क्वेरी के अनुसार क्या हो रहा है, ये स्क्रीन साइज को डिटेक्ट करके और जो भी प्रॉपर्टी हम इसके अंदर रखेंगे वो डिटेक्ट करके वो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, लाइक मीन बिट देना है, मैक्स बिट देना है, मैक्स हाइट, मीन्स कोई लिमिट हमें पास करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का बाउंड्री पॉइंट हुआ। जैसे अगर आप मीन बिट दे दिए बाउंड्री पॉइंट, मतलब क्या हुआ कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट उसे मिल गया कि यहाँ पे होना चाहिए, बट एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम, क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या हुआ, आपके पास 5 रुपया मिनिमम है, बट अनलिमिटेड कितना है, लिमिट उसका नहीं पता। सेम उसी टाइप से जब स्क्रीन का साइज क्या हो रहा है, मीन बिट हमारा 550 है, मैक्स बिट कितना है कोई नहीं मालूम, अनलिमिटेड वो जा रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, सीएसएस आपका ये अप्लाई हो गया। जब आपका मीन बिट 480 पिक्सल है, तब आपका सीएसएस क्या हुआ, ये अप्लाई हुआ। बट अगर बाय डिफॉल्ट इन द सेंस क्या, मिनिमम साइज से नीचे, जब मिनिमम साइज जो दिया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम तो हमें अनलिमिटेड मिल रहा है और अनलिमिटेड के केस में ये दोनों खुद अप्लाई कर दे रहे हैं, बट जब हमारा मिनिमम से नीचे अगर आ जाते हैं, मीन्स 480 पिक्सल से नीचे, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो आ जाएगा। लास्ट वाला कलर को ले रहा है ये। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है हमारा, जब हम रिड्यूस करते जाएंगे तो हमें तीनों का कलर हमें दिखते जाएगा। में आ गया, तो जब आप 480 से नीचे जाइए, ऊपर देखिएगा यहाँ पे 684 जो अभी टॉप में दिख रहा है, 480 से नीचे 287, 287 पे क्या हो रहा है, बॉडी का बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है। बट इससे जब ज्यादा जाएंगे तो ये आएगा, और उससे ज्यादा जब आएंगे तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, मोबाइल डिवाइस में चेंजेस आता है। समझ में आ गया मीडिया क्वेरी का वर्क कैसे करता है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जस्ट इसमें फोकस करने का क्या है, जो देखिए यहाँ पे हमें केयर ये करना है कि ये सीएसएस को कि हम यूज कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर हम किस टाइप से लिख रहे हैं, प्लस इसका एप्लीकेशन इसको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, मेन पॉइंट ये है। दूसरा सीएसएस लीजिए। इंटरव्यू में एक्चुअली बहुत ज्यादा ये पूछता है, ठीक है, मीडिया क्वेरी का। आपको ये जानना है कि हम अप्लाई करते कैसे हैं। समझ में आ रहा है ना कि सो गए हैं सब। हो सकता है तमिलनाडु वाले सो भी जाएं, साइक्लोन आया हुआ है ना। तो तमिलनाडु वाले सो जाएंगे तो फिर नॉर्थ वाले तो अलग ही हैं, वो तो बोलेंगे कि ठंड मौसम ऐसे ही है कि नहीं राकेश। यस सर। सो गए हैं क्या। सर नहीं सो भी जाएंगे। ये तो बोल रहे हैं जब तमिलनाडु वाले सोएंगे भाई साइक्लोन में, तो बिहार वाले तो ऐसे ही रहेंगे। वाले सर इतना थोड़े ना कमजोर होते हैं। नहीं बोलेंगे साइक्लोन आया हुआ है उधर, तो हम लोग को तो ऐसे ही ठंड का मौसम है। चलिए इस सरकारी अब नौकरी वाले ज्यादा अथी रहते हैं सर, प्राइवेट वाले का तो फजीयत ये है। सही है। देखिए नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ मीनू बार बनाए हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको साइड बार आ रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ नॉर्मल लिखा हुआ है, ये सबसे हमें मतलब है। यहाँ पे कुछ कुछ क्या है कि हमें मीनू बार बना हुआ है। मीनू बार में क्या दिया हुआ है, हम ये सीएसएस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें ये देखेंगे, हम मेन मोटो हमारा ये है कि मीडिया क्वेरी काम कैसे कर रहा है, हम उस सीएसएस का पूरा डिजाइन के पीछे नहीं भागना है। चलिए पहले इसको हम लोग दूसरे में जाते हैं, दूसरे विंडो में। अभी क्या हो रहा है, 1 सेकंड।
यहाँ पे जो कंटेंट नीचे लिखा हुआ है इसको पढ़िए, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है क्या यहाँ पे दे रहा है, सो ए मीनू दैट विल फ्लोट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज। अभी क्या है, मीनू बार हमारा कहाँ है, लेफ्ट में है। इफ द व्यू पोर्ट इज 480 पिक्सल वाइडर और वाइडर, मीन्स आई थिंक मीन दिया हुआ है और डायरेक्ट है। मीन विड्थ 480 पिक्सल है, तो जब 480 पिक्सल है तो क्या हो रहा है, फ्लोट लेफ्ट हो रहा है और विड्थ कितना है, 200 पिक्सल है। ठीक है, जो अभी जस्ट हम लोग जो पीछे किए थे ये वाला केस में, जब मिनिमम बिट्स जा रहा था तो कलर चेंज हम लोग कर रहे थे, अब यहाँ पे मीनू बार को चेंज कर रहे हैं। सेकंड क्या है, इफ द व्यू पोर्ट इज लेस देन 480 पिक्सल, जब व्यू पोर्ट क्या हो रहा है, 480 पिक्सल से लेस देन हो रहा है, उसे केस में क्या हो रहा है, मीनू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द कंटेंट। तो मीनू बार हमारा कहाँ आ रहा है, कंटेंट के टॉप में आ रहा है। हम लोग इसे जूम करते हैं, जूम करने पे भी शायद आपको जो है ना, हो सकता है कि दिखे वो, मोबाइल में तो चला गया ना। जब जूम हम लोग करेंगे अगर, तो अब ये स्विच करेगा, बट ये बेहतर नहीं है देखने का। देखने के लिए जब भी आप इंस्पेक्ट पे जाइए, वहां से आपको रियल सीन दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है आपका, ये रिस्पॉन्सिव साइज जो है कितना है, 415 है, 415। हमारा यहाँ स्क्रीन साइज क्या दिया हुआ है, मीन विड्थ 480, मीन्स जब हम 480 पे जाते हैं तो ये फ्लोट है लेफ्ट करना चाहिए। देखते हैं, लेफ्ट में आ गया, मतलब अभी आपका जो नेविगेशन बार जो था वो कहाँ था, टॉप में स्लाइड कर रहा था। मतलब जब आप मोबाइल डिवाइस पे आते हैं जनरली, तो क्या होता है, मीनू बार हमारा सबसे ऊपर दिखता है। आप जाइए W3 स्कूल को, ये अभी तक घूम क्यों रहा है ये पेज आप किसी भी वेबसाइट को लीजिए, सबका वही चीज रहेगा। अभी नेविगेशन बार कहाँ है, नेविगेशन बार हमें नीचे में दिख रहा है। ठीक है, आप इसे राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए। मोबाइल डिवाइस पे जाइए। तो अभी क्या हो रहा है, नेविगेशन बार हमें यहाँ पे ये ट्रिपल लाइन के पास दिख रहा है। जब क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है, अदरवाइज क्लिक करने पे हाइड हो रहा है। आपको इफेक्ट दिख रहा है। जब आप इसे क्लिक कर देते हैं, सपोज आपने अबाउट को क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, हम अबाउट पेज पे आ गए, फिर इसे क्लिक करेंगे, ये हमारा सेक्शन हाइड हो गया। तो ये कब हुआ, जब डिवाइस के अनुसार हो रहा है। जब इसे आप इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, सपोज मान लीजिए हम रेस्पॉन्सिव पे गए और हम इसका इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब देखिए किसी एक साइज पर जाकर ये क्या हो रहा है, नेविगेशन बार इसका पूरा का पूरा ओपन हो जा रहा है। और किसी एक साइज पे, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है 684, मतलब ये टैबलेट व्यू वगैरह शायद है। तो इस 680 इस पिक्सल पे जाकर क्या हो रहा है, आपका जो नेविगेशन बार का जो सेक्शन है वो क्या हुआ, हाइड हो गया और वो ट्रिपल लाइन के फॉर्म में आ गया। बट जब आप इसे इंक्रीज कीजिए, हाँ कितना पे जाकर हुआ है, एक सेकंड। ये देखिए 772, इतना के बिट्स पे आने पे क्या हो रहा है, ये नेविगेशन बार हमारा ओपन हो जा रहा है। इन द सेंस ये टैबलेट व्यू या फिर अदर डिवाइस में जाकर क्या हुआ, ये नेविगेशन बार आपका ओपन हो गया। क्यों, स्पेस साइज वहां पे हो सकता है उसे सफिशिएंट मिल रहा हो। बट जैसे ही इसके नीचे हम अगर जाते हैं तो नेविगेशन बार हमारा क्या हो रहा है, हाइड हो जा रहा है। और तब हमें स्टेप से ड्रॉप डाउन में के फॉर्म में ओपन हो रहा है। सेम चीज हम लोग का यहाँ क्या हो रहा है केस में, जब हमारा स्क्रीन साइज सपोज यहाँ पे हम लोग सबसे कम कर दिए, सबसे कम इन द सेंस हमारा क्या हो रहा है, अगर हम सबसे कम में चले जाएं, आपका स्मॉल स्क्रीन कंप्लीटली हो जाएगा और नेविगेशन बार कंप्लीटली श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि स्पेस साइज हमारे पास क्या है, स्क्रीन साइज हमें कम मिल रहा है। सेम केस यहाँ है, जब स्क्रीन साइज हमें कम है तो नेविगेशन बार हमारा क्या हो रहा है, टॉप में आ रहा है, टॉप में जा रहा है नेविगेशन बार। बट जब हमारा स्क्रीन साइज बड़ा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा हमें स्पेस है, तो हमारा नेविगेशन बार क्या हो रहा है, टॉप में सारे के सारे ओपन फॉर्म में आ रहे हैं। स्क्रीन साइज जब कम है तो क्या हो रहा है, ये टॉप में जाकर आपको ओपन हो रहा है। हम उसे हाइड कर सकते हैं ओपन, वो तो हमारे अलग सी से लिखने का चीज है।
बट यही जब आपका स्क्रीन साइज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मीन्स बड़ा आ गया, वैसे केस में क्या हो रहा है, नेविगेशन बार कंप्लीट ओपन हो रहा है, और वो भी किधर, लेफ्ट साइड में हम लोग उसे प्लेस कर रहे हैं। तो ये जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हो क्या रहा है एक्चुअली, हम लोग मीडिया क्वेरी के अनुसार उसे हम फ्लोट या जो भी हमें करना है सीएसएस वो हम लिख रहे हैं। मतलब मेन हमारा जो सीन है वो क्या है, मीडिया क्वेरी। ठीक है, तो मीडिया दे दिए, उसके बाद हम लोग ने स्क्रीन दिया एंड मिन विड्थ लिया, और मिनिमम विड्थ पे हमें क्या क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे पूरा उसे फॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब ये मत बोलिए कि ये डिजाइन कैसे बना, वो डिजाइन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब उसी चीज को अगर आपको हाइड एंड शो करना है तो फिर जावा स्क्रिप्ट यूज करके या फिर सीएसएस यूज करके फिर उसे हाइड एंड शो कर सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट आपको कोई वेबसाइट में ओपन हो रहा है उस टाइप से। ठीक है, तो ये था आपका नेविगेशन बार का केस। अब आइए दूसरे केस पे, दूसरा एग्जांपल। सिर्फ इसमें एग्जांपल ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सिर्फ उतना ही था। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कहीं सीएसएस में लिखा हुआ ना रहे वो, तो वो वर्क नहीं करेगा व्यू पोर्ट। अभी देखिए इसके केस में व्यू पोर्ट हमारा नहीं लिखा हुआ है, देखते हैं वर्क करता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर पहले क्या हो रहा है, पहले आपका बैकग्राउंड कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो सीएसएस जो लगा रहे हैं हम लोग क्या चीज पे, मैक्स विड्थ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग पहले जो देख रहे थे हमारा मिन विड्थ पे देख रहे थे। तो नाउ ऑन द स्क्रीन से दैट आर 992 पिक्सल वाइड और लेस, द बैकग्राउंड कलर इज ब्लू। जब आपका स्क्रीन साइज क्या हो रहा है, या तो 992 है या फिर इससे कम है, तो बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू आ रहा है। और सेकंड क्या है, मीडिया स्क्रीन मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, और जब स्क्रीन साइज आपका 600 पिक्सल है तो उसके केस में हमारा बैकग्राउंड कलर ऐसा आएगा एंड कलर हमारा ये रहेगा, और अदरवाइज कलर आपका ये हुआ। मतलब हम लोग ऑलरेडी पहले भी देखे कि मिन पे हम लोग ने 2-3 लगा के देखा था डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज पे, सेम चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मल्टीपल लगाना है तो सेपरेट सेपरेट हम पास कर सकते हैं, और ये नहीं कि हम लोग मैक्स लगा दिए तो मीन नहीं, नहीं दोनों आप लगा सकते हैं। मीन्स आप एरिया अगर चाहें तो बांध सकते हैं इस टाइप से। मीन्स आपने यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ पे आपने मैक्स ले लिया, नीचे में आपने मीन ले लिया, आप मल्टीपल पास कर सकते हैं जितना मन है आपको। ठीक है, इसमें तो वैसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी देखा हुआ। ये सिर्फ क्या था इसमें कि आपको मैक्स का कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। अब ये सीएसएस को देखिए, कभी कभी व्यू पोर्ट के अनुसार काम नहीं भी करता, मतलब उसका रहना जरूरी है, कभी काम कर भी ले रहा है वो। चलिए मोबाइल डिवाइस पे इसको रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही सीन जो अभी हम लोग जस्ट अभी हम लोग पहले देखे थे। ठीक है, जो नेविगेशन बार हम लोग पहले बना रहे थे इसका, कि हमें लेफ्ट में फ्लोट हो रहा था, स्क्रीन साइज ज्यादा होने पे ये पूरा स्क्रीन मीन्स कम होने पे ऊपर टॉप में जा रहा था। अब ये आपको क्या है कि रियल टाइम में हम लोग कैसे करते हैं,
तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको नेविगेशन बार ये दिख रहा है, ठीक है। जब हम इसका स्क्रीन साइज को रिड्यूस कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है, इसी टाइप से ओपन होता है, बट इसे ओपन करने या क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, एक बटन आ जाता है जनरली। ये बटन जैसा आ गया, तो ये क्या है, एक आइकन है एक्चुअली, सिंपल। मतलब आइकन आप ऐड करके उस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसे हाइड या फिर शो, ये काम हो रहा है वो। तो ये क्या हुआ, फिर आपका स्क्रीन साइज के अनुसार ये रिड्यूस कर लिया। इसका सीएसएस को देखिए। तो सीएसएस तो आपको पता है ऑलरेडी, नेविगेशन बार कैसे बनाएंगे वो तो नॉर्मल है, बट इसके लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे हो गया मीडिया स्क्रीन, फिर वही चीज ले रहे हैं हम लोग, फिर से मैक्स विड्थ पास कर दिए। फ्लोट क्या कर रहे हैं, फ्लोट नन, फ्लोट हमारा ऑलरेडी गायब हो गया। और विड्थ हमने क्या किया, विड्थ 100% पास कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये जो ऑलरेडी आपका टॉप नेव एंड एंकर टैग, टॉप नेव कहाँ लगा हुआ है, ओके, ये पूरे डीप सेक्शन का, तो ये पूरा डीप सेक्शन का विड्थ अगर हम 100% देंगे तभी तो वो पूरा स्क्रीन में आएगा। तो ऑलरेडी हमें पता है कि जब हमारा मोबाइल डिवाइस आता है तो स्क्रीन साइज छोटा हो जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये पूरा डीप को विड्थ 100% देने के कारण ये पूरा एंकर टैग क्या हुआ, ये पूरा एरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। और फ्लोट हमारा नन हो गया। क्यों, क्योंकि हमें कोई लेफ्ट राइट चाहिए नहीं, इसलिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बाकी ये सब सीएसएस है, सीएसएस को इसको देखने का नहीं है ना। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या चीज को देख रहे थे, हम लोग नेविगेशन बार के ऊपर हम लोग अभी फोकस कर रहे थे कि हमारा नेविगेशन बार कैसे स्विच हो रहा है। आपको ये आगे जो हम लोग नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें नेविगे अभी अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हमारे पास जो नेविगेशन बार था वो टॉप में नेविगेशन बार चल रहा था, जो अभी हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था। कुछ बग्स आ गया है क्या इसके वेबसाइट में? ओके, अभी जो हमारे पास नेविगेशन बार है वो क्या है, हमें टॉप में दिख रहा है, करेक्ट। हम बट हम लोग जो अगला जो वेबसाइट बनाने वाले हैं उसमें नेविगेशन बार आपको टॉप में नहीं है, आपको ये नेविगेशन बार पूरे ये इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में रहेगा, लाइक जैसे आपको W3 स्कूल में जनरली आता है, ये जो कोर्स में जो आ रहा है जो सेक्शन का। तो इस टाइप का नेविगेशन बार आपको एक्चुअली नेक्स्ट में हम लोग को बनाना है, क्योंकि जब भी आप एडमिन पैनल का कोई वेबसाइट अगर बनाते हैं तो आपको उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेक्शन आ जाता है, और वो सेक्शन आप हॉरिजॉन्टल में पास नहीं कर सकते हैं सारा, उतना स्पेस नहीं होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कवर किए नेविगेशन बार के लिए, कि हमने नेविगेशन बार को कैसे स्विच कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास स्क्रीन है, मीन्स कंटेंट हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ पे ही मान लीजिए क्या है, एक सेक्शन नेविगेशन बार का है, दूसरा आपका बॉडी में डेटा आ रहा है, और तीसरा है आपका ये राइट साइड में जो एडवर्टाइजमेंट जो लिखा हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है, ठीक है। मतलब ये पूरा स्क्रीन को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम बूटस्ट्रैप के अनुसार चले तो इसे कितना कितना पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, ये अगर 3 भाग में हमारा डिवाइड है तो कितना कितना करेंगे तो ये हो सकता है बूटस्ट्रैप के अनुसार। हेलो, बोलिए। 82. 282, ठीक है। मतलब बीच में हमें ज्यादा चाहिए स्पेस, लेफ्ट साइड में हमें थोड़ा चाहिए, सेम जितना लेफ्ट साइड में उतना ही मान लीजिए हमने राइट साइड में दे दिया। तो हम लोग अगर 2 2 दे दिए राइट लेफ्ट को तो 2 and 2 4 हो गया, और बीच में 8 दे दिए तो 8 4 12, मीन्स टोटल स्क्रीन साइज हमारा 12 कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज अगर हमें सीएसएस के अनुसार करना है, मीन्स, और हम लोग ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अगर हम लोग ये 3 भाग में डिवाइड किए, बट किए क्यों, विदाउट डिवीजन का भी तो हमारा वेबसाइट रेडी हो रहा है,
और ये सेक्शन डिवाइड करना है तो हम लोग नॉर्मल फ्लोट वगैरह या बिट्स को यूज करके भी कर सकते हैं। अगर हमने 3 डिव ले लिया, उसमें हम लोग बिट्स मान लीजिए इस सेक्शन लेफ्ट वाले सेक्शन को बिट्स अगर 100 पिक्सल दे दें तो 100 पिक्सल में ही स्क्रीन आएगा। बीच वाले को हमने मान लीजिए 70 पिक्सल दे दिया और फिर से राइट वाले को हमने बिट्स कुछ पास कर दिया 20 पिक्सल मीन्स 200 पिक्सल, वैसे भी तो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आखिर 3 भाग में, इसमें दिया है तो वो responsive में भी help करता है। हाँ, तो mainly why we are doing for making that website responsive. Okay, otherwise same thing we can go with the padding margin, we will get the same output, but it will be not work proper in the case of the mobile device. So that's why we using that technique to divide the screen. So same thing we can do with the help of Bootstrap, but same if we want with the help of CSS, then we can perform that. Like here you can see that some image is there. So large screen 1, 2, 3, 4. 4 section is there. When it came to medium screen, 2 section is there. And when it came to small screen, 1 section is there. It means same whatever we had done with the help of Bootstrap, same thing we can do here also. And one thing, why we writing then Bootstrap? If same thing we can do with the help of CSS also, then why we going with the Bootstrap? Why not we can go with CSS? What is the need of that? Bootstrap reduce our codes. What it will give? Our code. Yes, sir. Sir, only writing Line class. It will be reduce the length of the code. Writing code से the code is longer. भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, इको बन रहा है क्योंकि आप सो के बोल रहे हैं इसलिए। No sir. अच्छा, अभी क्लियर आ रहा है। भैया का आवाज नहीं है ये। ठीक है, देखिए बूटस्ट्रैप एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, मान लीजिए यहाँ पे तो कुछ कुछ जो हुआ वो तो डिजाइन हमारा क्या है, वो आपका डिजाइन आपको डिजाइन करने के लिए है, बट स्क्रीन साइज के अनुसार क्या होना है, कितने पे क्या चेंज करना है, उसके लिए हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, मीडिया को यूज कर रहे हैं। मीडिया के अनुसार ही हमारा क्या हो रहा है, स्क्रीन स्विच कर रहा है। और स्क्रीन जैसे ही हम लोग स्विच कर रहे हैं मीन्स स्क्रीन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो कंटेंट हमारा स्विच कर रहा है मीडिया के हेल्प से। बट सेम चीज को लिखने के लिए अगर आप CSS पे देखें तो कम से कम कितना लाइन हुआ, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन कुछ इस टाइप से चल रहा है। और सेम चीज को अगर हम बूटस्ट्रैप के हेल्प से करें तो कितना लिखना पड़ेगा, मात्र 1 लाइन या 2 लाइन रहेगा। जनरली हम लोग कॉलम रो ये सब यूज करते हैं, हमारा हो जाता है, यही करते हैं ना। तो एक्चुअली हम लोग बूटस्ट्रैप क्यों यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोड लिखना क्या हो रहा है कि हमारा प्री रिटन कोड है, कोड सेम लिखा रहा है। जो आप CSS में अभी देख रहे हैं सेम कोड आपको बूटस्ट्रैप में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहां कुछ अलग है, नहीं सेम चीज है। बट जो कोड आप मैनुअली लिख रहे हैं वहां लिखा हुआ है और वो क्या है, किसी क्लास के अंतर्गत है। ठीक है, जब वो क्लास के अंदर है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट उस क्लास को यूज कर ले रहे हैं। मीन्स हमें ये नहीं देखने जा रहे हैं कि उसके अंदर क्या लिखा गया, बस हम लोग क्या कर रहे हैं उस क्लास को हमने कॉल कर लिया और जैसे ही कॉल किया हमारा वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। सपोज दैट यहाँ पे ही आप मान लीजिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, आप नीचे देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं एक रो लेते हैं और फिर हम लोग एक क्लास कॉलम लेते हैं। ये आपको लग रहा है कि आपका ये क्या है, बूटस्ट्रैप है, बट बूटस्ट्रैप का लिंक पास किया हुआ है, देखिए कहीं भी, ये पूरा का पूरा क्या है, CSS है, बूटस्ट्रैप का तो लिंक ही नहीं है कहीं पे। तो ये जो हम लोग क्लास का नाम जो लिखते हैं कभी भी, रो या कॉलम या कुछ भी, तो वो क्या है, वो हमारा CSS लिखने के लिए है, उससे उसका लिखने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम लिखेंगे तो इफेक्ट आएगा, लिखने से इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट तब आएगा जब उसके रिलेटेड कुछ लिखा हुआ हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे रो ले लिया और अगर रो लिए हैं तो रो के लिए यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ रहेगा तब तो आपका वर्क करेगा। बट हम रो लिखने से थोड़ी ऐसा है कि वो
मतलब जनरली क्या होता है फ्रेशर के केस में, जब यहाँ पे रो लिख लिए और हमने अगर बूटस्ट्रैप पढ़ लिया तो आप डायरेक्ट सोचिएगा क्या रो लिखे हैं तो वो तो रो जैसा वर्क कर गया। यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है तो जनरली बूटस्ट्रैप में हम कॉल पढ़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कॉल लग गया तो मतलब कॉल का इफेक्ट तो आना चाहिए, बट क्यों नहीं आ रहा है? तो ये आएगा कहाँ से? ये बूटस्ट्रैप का है ही नहीं। तो अब बूटस्ट्रैप का क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे तो कोई लिंक ही पास नहीं किया बूटस्ट्रैप का। बात समझ में आ रहा है? तो जनरली हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है फ्रेशर जब हम रहते हैं तो हमें आइडिया नहीं रहता है तब। तो इसलिए तो नाम क्या लिखा हुआ है उससे कोई मैटर नहीं है, मैटर करेगा उस जो क्लास का नाम आप यूज किए हैं उस पे सीएसएस क्या लिखा गया है। सपोज दैट यहाँ पे बैकग्राउंड है, अगर हमने एक क्लास का नाम लिख दिया बैकग्राउंड, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे कि उससे बैकग्राउंड का कुछ इफेक्ट हो रहा होगा। हम लोग बैकग्राउंड कलर नाम का एक सीएसएस क्लास बना दिए, तो आप उससे क्या समझिएगा कि बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर पे कोई इफेक्ट होगा। और सपोज बैकग्राउंड कलर के जगह पे हम लोग सीएसएस के केस में मीन्स हमने क्लास का नाम दे दिया बैकग्राउंड कलर, बट यहाँ पे जब हम सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, जब सीएसएस पास कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर को, तो उसमें हम लोग फॉन्ट कलर को चेंज कर दिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम लोग यहाँ वहां गलत लिखे, गलत कुछ नहीं है हमारा, क्योंकि वो तो एक नाम था, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर नाम का एक क्लास पास कर दिया। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने एक बैकग्राउंड कलर नाम का एक क्लास पास किया। अब इस पे अगर कोई भी सीएसएस लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके केस में हम जाएंगे, क्लास है तो क्लास बनाएंगे, और हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के जगह हमें यहाँ पे यहाँ करना क्या है, बैकग्राउंड कलर को पास करना है, बट हम बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करके हम फॉन्ट कलर को पास कर दिए। ओह सॉरी, फॉन्ट के लिए तो सिर्फ कलर होता है ना, नहीं ये लिख दिया, तो क्या लगता है आपको ये गलत लिख दिए? अगर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्लास में हमने सिर्फ कलर पास किया तो क्या ये वर्क नहीं करेगा? वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो जस्ट क्लास है, इसको उसके लेने से कोई मतलब ही नहीं है। सपोज यहाँ क्लास में मान के चलिए यहाँ हम हाइट लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे हाइट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं विड्थ का, तो क्या ये वर्क नहीं करेगा? वर्क तो करेगा ही, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्या, उसके इंटरनल सीएसएस से कि वो क्या लिखा हुआ है। तो नेमिंग कन्वेंशन से कंफ्यूज मत होइएगा कि नेमिंग कन्वेंशन क्या लिख रहे हैं। इसलिए जनरली हम लोग करते क्या है, नेमिंग कन्वेंशन रिलेवेंट लिखते हैं कि वो वर्क क्या करेगा, ताकि वो क्या हो, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, इसलिए एक्चुअली। और वैसा केस कुछ नहीं है डिफरेंट दोनों में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक डिव लिया जो रो, ठीक है, और रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट में हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हमें रो का मतलब पता है लेफ्ट टू राइट। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक कॉलम हम लोग एक डिव ले रहे हैं जिसको हम लोग कॉलम के नाम से रख दिए। कॉलम का मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम, जो जनरली टेबल के केस में क्या होता है, हमें एक सेल बन जाता है। फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉलम हम लोग इस टाइप से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, स्टाइल जस्ट बैकग्राउंड कलर कुछ पास किया हुआ है और कुछ कंटेंट लिया हुआ है। अब आइए सबसे ऊपर यहाँ पर, तो कॉलम के केस में पहले रो को देखिए। रो के केस में क्या है, रो आफ्टर कुछ कंटेंट है, टेबल डिस्प्ले है, क्लियर बोथ, ये सब है, उसे इग्नोर कीजिए। कॉलम के केस में क्या हो रहा है, हम लोग कॉलम को क्या कर रहे हैं, फ्लोट 25 सॉरी फ्लोट लेफ्ट विड्थ 25 पिक्सल, इसका मतलब क्या हुआ, विड्थ 25, लेफ्ट साइड में सर 25% विड्थ रहेगा सर। बट हम लोग यहाँ 25 दे रहे हैं, 25 देना ही क्यों जरूरी है यहाँ पर? ताकि स्क्रीन का ऑटोमेटिक ऑक्यूपाई कर लेगा 25%। नहीं वो ठीक है, बट वो केस नहीं है। यहाँ टोटल कितना डिव लिया हुआ है, रो जो ये सॉरी कॉलम जो लिया हुआ है, 2 3 4, टोटल कितना है, 4 कॉलम है। 4 कॉलम इन द सेंस कितना हुआ, 25 it mean 1/4 of the 100%. हाँ मीन्स टोटल है जो कितना है, स्क्रीन साइज हमारा कितना होता है 100%, और 100% को हमने क्या किया, 4 भाग में स्प्लिट कर दिया, 4 पार्ट में, ठीक है। तो कितना मिल गया पूरे स्क्रीन को, 25 मिल गया, मिल जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे जो बिट्स लिया गया ना वो एक्चुअली 25 लिया गया है, समझ गए।
कि ताकि इक्वली सबको मिल जाए। तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या हो रहा है कि 25 आ रहा है, बट स्क्रीन साइज के अनुसार फिर क्या हो रहा है, रुकिए पहले इसको रन कीजिए। अभी क्या हुआ, आपका ये पूरा का पूरा स्क्रीन को कवर कर लिया और कितना पर, 25 पे। अभी आपका स्क्रीन साइज क्या है, 25 हम लोग कवर करके चल रहे हैं। अगर मान के चलिए 25 के बदले हम लोग इसे 50 दे दें, अब क्या हुआ, ये 50 आ गया। मीन्स क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे एक पहला रो जो है आपका, ये क्या कर रहा है, जितना भी हम लोग बिट्स दे रहे हैं उसके अनुसार ये एडजस्ट करेगा। बट ये एक्चुअली में है क्या, तो फर्स्ट रो ही है, बट स्पेस ना होने के कारण ये सेकंड रो में आ गया। आप इसे जब जूम कम कीजिएगा तो ये मैनेज कर सकता है, नहीं बट ये पीछे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिट्स हम लोग, हाँ यहाँ पे ये 50 के अनुसार वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, बट हम लोग को चाहिए क्या, हमारे अनुसार होना चाहिए कि ये पूरा कॉलम जो 4 है वो पूरा एक सिंगल स्क्रीन में रहे, सिंगल स्क्रीन में रहे, और ये 4 भाग में डिवाइड होकर 4 भाग में स्प्लिट हुआ। बट जब हम स्क्रीन साइज को कम करें, क्यों, मतलब हम टैबलेट व्यू पे जा रहे हैं या मोबाइल डिवाइस पे, तो ये कंटेंट क्या होगा आपका, स्मॉल होते चला जाएगा। मान लीजिए आप जाइए W3 स्कूल या कोई वेबसाइट पे लीजिए, यहाँ पे ये 3 जो कंटेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, अब इसे आप नॉर्मल पे हैं, अब आप जाइए मोबाइल डिवाइस पे, कोई भी हम मोबाइल डिवाइस ले लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, स्क्रीन साइज इसका छोटा हो गया, ये कितने भाग में आया, एक ये रहा, दूसरा नीचे, और तीसरा नीचे आ गया। मतलब बाय डिफॉल्ट जो पहले था वो क्या था, 100% में जा रहा था, मतलब 100% को 3 भाग में उसने स्प्लिट कर दिया, 33.33 करके कर देगा तो आ जाएगा। और सेकंड, जब वही स्क्रीन साइज हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इन द सेंस मोबाइल डिवाइस पे जब आया, तो उसके केस में क्या हो रहा है, मीडिया क्वेरी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 768 पिक्सल पे, 768 है, फिर नीचे 480 पिक्सल है, मीन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे CSS आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है मीडिया क्वेरी। तो जब हमारा स्क्रीन साइज डिवाइड हुआ तब क्या हुआ, ये 3 रो जो था वो तीनों जो है वो, सॉरी, फर्स्ट रो जो सिर्फ था वो 3 कॉलम के साथ वो स्प्लिट होकर टॉप टू बॉटम में आ गया, और स्क्रीन साइज उसका उसका जो रेशियो जो दिया गया था विड्थ का, वो क्या हुआ, चेंज कर दिया उसने। तो कॉलम को अगर आप बाई डिफॉल्ट देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्लोट लेफ्ट विड्थ 25% दे दिया गया। तो ये फ्लोट लेफ्ट देने के कारण पता है ना क्या हो रहा है, हम लोग जो बॉक्स का डिजाइन पहले बनाए थे, एक दूसरे के जस्ट बगल में आना, वही ये फ्लोट लेफ्ट के कारण क्या हो रहा है, सारा एक दूसरे के बगल में आ रहा है। बट वही चीज मीडिया पे जाइए, जब आपका स्क्रीन साइज क्या है, 992 पिक्सल है, ठीक है, तो जब आपका स्क्रीन साइज थोड़ा सा क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो उसके केस में हम कॉलम को कितना ले रहे हैं, 50 पिक्सल। इन द सेंस जो विड्थ हमारा 25 पिक्सल जा रहा था उसे हमने क्या कर दिया, 50 पिक्सल कर दिया। और जब जैसे ही 50 पिक्सल किए, वो क्या हुआ, पूरा स्क्रीन जो 4 कॉलम था वो एक रो में सिर्फ 2 कॉलम आ रहा है। हम्म, अब इसे आप दूसरे डिवाइस पे जाइए, क्या हुआ, दो दो में स्प्लिट हो गया, कब, जब इसका स्क्रीन साइज क्या है, मैक्स विड्थ 992 है, ठीक है, 50 पिक्सल पे गया। सेकंड, फिर जब आपका मैक्स विड्थ कितना है, 600 पिक्सल है, तब ये क्या हो रहा है, 100% पे ला रहा है। चेंज कीजिए इसे, जब आपका स्क्रीन साइज क्या हो रहा है, और छोटा हो गया, ये क्या हुआ, 4 जो था वो ऑटो एडजस्ट होके, और विड्थ हमारा कितना आया, 100%। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन देखें तो CSS आपका सेम जो पहले लिख रहे थे वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बट मेन जो हमारा इसमें जो एक मेन जो एडवांटेज है वो क्या है, तो सिर्फ @मीडिया जो हम लोग ऐड कर रहे हैं बार बार। तो इसके अनुसार क्या हो रहा है, हम स्क्रीन रिजोल्यूशन पास करके, यहाँ पे स्क्रीन रिजोल्यूशन को पास कर रहे हैं, और उसके अनुसार हमारा डिजाइन क्या हो रहा है, स्विच कर रहा है। और हम ये अपने अनुसार कर रहे हैं कि कितना हमें स्क्रीन, कौन से स्क्रीन पे कितना लेना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा कंटेंट एंड प्लस स्क्रीन दोनों को हमें
सिंक अप करके चलना पड़ेगा कि स्क्रीन साइज जब छोटा हो रहा है तो हमें कंटेंट कितना पास करना चाहिए, जब हमारा स्क्रीन साइज बड़ा हुआ तो कितना पास करेंगे। समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्या था, पहले जो हम लोग किए वो नेविगेशन बार पे हम लोग वर्क कर रहे थे कि नेविगेशन बार हमारा कैसे स्विच होगा। जब हम अभी हमारा क्या हुआ, कंटेंट पे स्विच किए। सबको वॉइस इश्यू हो रहा है क्या? हाँ हाँ हम्म, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। तो अब देखिए, तो अभी हम लोग पहले जो कर रहे थे वो क्या था, हमारा नेविगेशन बार पे वर्क कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट के बारे में समझ रहे हैं। तो जब अगर आप दो चीज को समझ गए, सपोज नेविगेशन बार एंड कंटेंट, तो फिर इसके बाद तो वेबसाइट अगर बना रहे हैं कोई भी वेबसाइट, तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखें शुरू से, तो कोई वेबसाइट में क्या है, नेविगेशन बार है, उसके बाद क्या है, सपोज ये अबाउट अस का सेक्शन जो है, यहाँ पे कुछ डिजाइन है। तो हमें पता है कि जब हमारा स्क्रीन साइज डिवाइड मतलब स्मॉल होगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, स्विच कर देंगे। जो हमारा अभी हम लोग जस्ट देखें कंटेंट को कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे है, ये कैसे है, ये डिजाइन को अगर देखें तो क्या हो रहा है इस डिजाइन में, जब ये स्मॉल स्क्रीन पे जाएगा तो कैसे करके इसको होना चाहिए, कोई आइडिया? मतलब सर 12 में डिवाइड हो जाएगा ना पूरा? हाँ तो बट यहाँ तो बूटस्ट्रैप है तो 12 का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, करेक्ट? तो 1 सेकेंड। तो बूटस्ट्रैप नहीं है तो 12 नहीं तो 100% का कॉन्सेप्ट है। बट जब हम मीडिया क्वेरी अगर हम जब स्मॉल स्क्रीन पे जाएंगे तो क्या होगा, ये 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। तब ये इमेज जो है एक साइड आएगा एंड ये जो कंटेंट है वो क्या होगा, ये पूरा कंटेंट दूसरे एंड पे आ जाएगा, करेक्ट? चेक कीजिए। क्योंकि देखिए कोड लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जब आप एनालाइज करना समझ जाते हैं कि कैसे एनालाइज हो रहा है उसका, तब आपका कोड ऐसे ही बन जाएगा। अभी क्या हुआ, जब हम स्मॉल स्क्रीन पे गए, स्मॉल स्क्रीन तो क्या हुआ, ये इमेज जो है ऊपर आ गया, प्लस ये नीचे में सारा जो कंटेंट था ये डिवाइड हो गया है आपका। फिर नीचे में मान लीजिए ये डिजाइन, ये तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 100% पे जा रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिक वो कर लेगा। फिर यहाँ पे है अवर सर्विसेज, 1 2 3 और है क्या, हाँ 3 और 3 नीचे में आ गया 6। तो ये पूरा 6 डिजाइन है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हमारा लैपटॉप व्यू है तो क्या हो रहा है, हमारे पास 6 डिजाइन आ रहे हैं। मतलब ये ये पूरे स्क्रीन को कितना में स्प्लिट कर रहा है, 3 भाग में कर रहा है, जिसमें लेफ्ट एंड राइट में दोनों साइड में थोड़ा सा मार्जिन है। इन द सेंस मान लीजिए मार्जिन कुछ भी मतलब छोड़ा हुआ हो, बट 3 भाग में करना है तो हमें 33.33 लेकर चलना होगा 100% को। 100 को अगर 3 भाग में डिवाइड कर दें तो 33.33 आ जाएगा। तो जब आप उतना के लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 रो है। और जब यही चीज को हम लोग जाते हैं किस पे, मोबाइल डिवाइस पे, सेकंड, हाँ मोबाइल डिवाइस पे, तब देखिए क्या हो रहा है। तो एक ऊपर है, दूसरा नीचे, 3 4 5 6, मतलब वो जितना जो 6 था वो क्या हुआ, सबके सब टॉप टू बॉटम में आ गया।
ठीक है। फिर यहाँ पे डिजाइन ये रहा, ये फिर से 3 भाग में ऑलरेडी स्प्लिटेड है। फिर ये जब मोबाइल डिवाइस में जाएगा ये क्या होगा, टॉप टू बॉटम में आ जाएगा, 1 2 3। समझ में आ रहा है। फिर नीचे पे 1 2 3 4, यहाँ जो डिजाइन है ये 4 का, तो फिर ये जब स्प्लिट होगा तो कितना परसेंट पे हम लेकर चलेंगे इसे, 25 पे। 25 पे। फिर जब आप जा रहे हैं तो 25 पे लीजिएगा, ये सब के सब आपको क्या होंगे, प्रॉपर आ जाएंगे। फिर नीचे स्प्लिट कीजिए, फिर ये यहाँ पे सेक्शन हुआ 1 2 3 4, फिर ये 25 भी के सेक्शन पे 25 लेंगे पे। तो फिर आपका डिजाइन वो पूरा बन जाएगा। दिख रहा है ये पूरा एक एक कार्ड जो है 25 का सेक्शन पे आ गया। फिर नीचे जाइए, और कुछ है यहाँ पे हुआ, तो मान लीजिए एक सेक्शन हमारा ये रहा, एक डिव, दूसरा डिव मान के चलते हैं ये रखे, और तीसरा डिव ये पूरा रहा जो फॉर्म है, ये कितना स्प्लिट करेंगे, कैसे, इसको देखते हैं कि मोबाइल में जा कैसे रहा है। इन द सेंस ये दोनों सेक्शन का क्या हो रहा है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस दोनों नीचे, और नीचे में आपका फॉर्म आ गया, मतलब ये 3 भाग में स्प्लिट हो रहा है। 25 अगर देखा 25। नहीं, बट 25 नहीं लेंगे, ये दोनों सेक्शन को अगर देखा जाए, अगर फॉर्म को देखिए तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, हाँ। उसका स्क्रीन साइज हमारा बड़ा आ रहा है। और ये जो एड्रेस जो दिया हुआ है सेक्शन, ये सेक्शन क्या है, ये दोनों सेक्शन एंड प्लस जो फॉर्म का सेक्शन है वो दोनों दोनों इक्वल चल रहे हैं। ये कंप्लीट सेक्शन जो है ये इक्विवेलेंट है ये फॉर्म के सेक्शन का, मतलब पूरे को हम 50-50 में कन्वर्ट कर दिए, और जब वो मोबाइल डिवाइस पे जा रहा है तो ये जो आपका जो 50 था ये फिर से डिवाइड हो गया, 50 को 50-50 फिर से, ऐसा ही हो रहा है ना। देखिए एक सेक्शन ऊपर नीचे और ऐसे। तीसरा आपका फॉर्म का सेक्शन, मतलब पहले तो ये दोनों मिलकर 50-50 में कन्वर्ट कर लिए, और फिर ये तीनों मिलकर 50-50 में पहले किए, और उसके बाद ये जो 50 के अंदर में था इसे फिर डिवाइड किया गया, ठीक है। फिर आपका नीचे का डिजाइन, इसका डिजाइन देखते हैं कि कैसे आ रहा है। ये श्योर है कि नीचे हॉरिजॉन्टल में जा रहा होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4, नीचे में 5, तो फिर ये क्या हो रहा है, बट ये सेम जा रहा है, इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जब ये लास्ट आ रहा है तब ये नीचे स्प्लिट होकर आ जा रहा है, नीचे में वो बैक जा रहा है। तो समझ में आया। तो इस टाइप से क्या है कि आप पूरे वेबसाइट, देखिए कोड लिखना मैटर नहीं है, मैटर है कि स्किल्स को गेट करना, कि आप थिंकिंग कैसे करते हैं, लॉजिक कैसे लगा रहे हैं उसके पीछे। तो ये जब आप एनालाइज करते हैं कोई डिजाइन को तो आपको 50% आपका इशू जो है ऑटोमेटिक वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी 50% रहा आपको कोड लिखना, कोड आपको आ रहा है लिखने तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, पर मैटर ये करता है कि हमें सोचना कैसे है उस चीज को। तो इस टाइप से जब एनालाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन को नीचे करना है, कौन सेक्शन को उस पे ही रखें, ये चीज है, ठीक है। तो अब अगर आपको मीडिया क्वेरी अगर आ रहा है, सेकेंड मीडिया क्वेरी एंड फ्लेक्स, ये दो कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट का डिजाइन को आप बना दे सकते हैं, प्लस रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको वेबसाइट, कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि वेबसाइट बनाना है तो वो रिस्पॉन्सिव को ही पॉइंट करके चलता है, वो आपको बोलेगा नहीं कि रिस्पॉन्सिव बनाना है, बट आपको ये रिस्पॉन्सिव ही बनाना है, ये चीज है। तो ये जो हम लोग डिजाइन अभी जो बनाए ये क्या था, मीडिया क्वेरी की हेल्प से बना रहे थे, ठीक है, ये मीडिया के हेल्प से। बट सेम चीज को बनाने के लिए हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है जो है फ्लेक्स, ठीक है। आगे हम लोग फ्लेक्स को पढ़ेंगे, वो अलग सेपरेट टॉपिक ही है, बट फ्लेक्स के हेल्प से भी हम सेम डिजाइन को हम गेट कर सकते हैं। अभी अगर मैं ये बताऊंगा तो कोई पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि हम लोग फ्लेक्स को कवर नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसे मैं अभी इग्नोर कर देता हूँ। चलिए इस CSS को देख लेते हैं सिर्फ। फ्लेक्स शायद इसमें है या नेक्स्ट वाला टॉपिक में है, बट फिर आगे है। इंटरव्यू के पॉइंट में एक्चुअली सबसे ज्यादा आपको मीडिया क्वेरी एंड फ्लेक्स, अगर आप रेस्पॉन्सिव के बारे में कोई भी पूछ रहा है तो श्योर है ये पॉइंट जरूर पूछता है, क्योंकि अगर ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो आप कोई भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स है और डिस्प्ले फ्लेक्स से रैप है। ये क्यों यूज कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगा फ्लेक्स के टॉपिक में।
फिर यहाँ पे आपका फ्लेक्स यूज किया गया 25 पिक्सल, ठीक है। और स्क्रीन साइज के अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है, फ्लेक्स को ही चेंज किया जा रहा है। हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, विड्थ को चेंज कर रहे थे। हम लोग विड्थ को 100%, 25, 50 ले रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्थ को नहीं बल्कि हम फ्लेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और फ्लेक्स को हम डिफरेंट डिफरेंट साइज पर पास कर रहे हैं। 25 पिक्सल, फ्लेक्स 50 पिक्सल। फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन को ही हमने चेंज कर दिया। जब हमारा स्क्रीन साइज क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे दैट आर 600 पिक्सल वाइडर और लेस, मतलब जब हमारा मोबाइल डिवाइस पे आ गया एकदम छोटा हो गया 600 पिक्सल पे, तो उसके केस में हम लोग पीछे क्या किए थे, 100% कर दिए थे। पहले हम लोग 25 लेकर चले थे, फिर हमने 50 पिक्सल किया था। और इसके केस में क्या हो रहा है, हमने फ्लेक्स का डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया, जो क्या हो गया, कॉलम में आ गया। कॉलम का मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। कॉलम का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। Top to इतना भी bottom. मत सोइए, टॉप टू वरना बॉटम। सप्ताह में एक दिन क्लास कर रहे हैं, इतना भी सोइएगा पार हो जाएगा सब कुछ। पहले बता देता हूँ, ये जितना इजी लग रहा है ना वो है इजी ही, बट इंटरव्यू में ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि 5 दिन में आप भूल जाइएगा कि फ्लेक्स और मीडिया क्वेरी होता है क्या है, जब आप प्रैक्टिकल यूज नहीं किया हुआ है आपका तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, फ्लेक्स 25 लेकर चले, फिर 50 लिए, और फिर हमारा हमने डायरेक्शन को ही पास कर दिया कॉलम को। अब देखिए अभी आपका क्या है, ये जो आउटपुट प्लस ये आउटपुट दोनों सेम है, बट ये आउटपुट जो है किसके अनुसार है, ये मीडिया क्वेरी पे हम लोग लाए थे, ये हमारा फ्लेक्स के हेल्प से है। ठीक है, अभी इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए जितना भी अभी हम लोग सीएसएस देख रहे हैं सबके सब ये एडवांस लेवल का सीएसएस है। ठीक है, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो बेसिक तो सीएसएस नॉर्मल है, कोई भी पूछेगा, बट एडवांस लेवल का जब आपसे अगर वो एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं 2 साल 3 साल, 1.5 भी अगर आप शो कर रहे हैं, तो आपको श्योर है कि वो पूछेगा एडवांस लेवल का। तो हम लोग इसीलिए कवर कर रहे हैं, नहीं तो इतना कवर करने का कोई जरूरत ही नहीं है। पिछले बैच में हम लोग इतना कवर ही नहीं करने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम आउटपुट आपको जैसा पहले के केस में आ रहा था वही आपको यहाँ भी आउटपुट आएगा। आप अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, अभी आपका क्या हुआ, मोबाइल लैपटॉप व्यू पे आ गए हम लोग, हमारा स्क्रीन साइज क्या है 1468 पिक्सल है विड्थ हमारा, तो इसमें क्या हो रहा है, हमें 100% आ रहा है। फिर जब हम लोग इतना पे गए 890 पे, तो क्या हुआ, 50% में डिवाइड हो गया हमारा सीएसएस। वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए फ्लेक्स रैप, ठीक है, विड्थ को यहाँ नहीं दिखा रहा है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लेक्स विड्थ कितना हुआ 50%। अभी इसे यहाँ पे डिक्रीज कीजिए, अभी क्या हुआ, अब आपका ये क्या हो रहा है, पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे 100%, अभी ये क्या हो रहा है हमारा कॉलम में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो गया, कॉलम, मतलब हमने उस टाइप से चेंज कर दिया। हम चाहते तो 100% भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग उसे कॉलम और रो के केस में हम इसे डायरेक्शन इसका एक्चुअली होता है फ्लेक्स का चेंज हो जाता है। फ्लेक्स जब कवर करेंगे तो ये सब हम लोग एक एक लाइन जाएंगे इस पे, बट फिलहाल के लिए हम ये देखें क्या, कि सेम काम को हम मीडिया क्वेरी के हेल्प से कर सकते हैं, सेम काम को हम फ्लेक्स के काम से, फ्लेक्स के हेल्प से भी कर सकते हैं। और आउटपुट में क्या है, मतलब कोड लिखने के अगर देखा जाए तो कोड में अगर आप देखिए तो फ्लेक्स में आपको लेस लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है कंपेयर टू मीडिया क्वेरी। मीडिया में अगर देखा जाए हमने रो आफ्टर बिफोर ये कॉन्सेप्ट को यूज किया, कॉलम में अगर आप जाइए तो फ्लोट लेफ्ट विड्थ पैडिंग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपका देखा जाए तो 3 लाइन यहाँ है, 3 लाइन यहाँ, 6 लाइन यहाँ कोड हुआ, बॉक्स साइजिंग हो गया। ठीक है, इस पे देखिए फ्लेक्स के केस में बॉर्डर बॉक्स तो ले रहे हैं हम लोग, रो के केस में क्या हो रहा है, 2 लाइन है, वहां पे 3 लाइन था आपका डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप, बस। कॉलम के केस में क्या हो रहा है, फ्लेक्स 25 पैडिंग। इसके केस में क्या हो रहा है, कॉलम के केस में तो फ्लोट लेफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग विड्थ एंड पैडिंग को ले रहे हैं। बट हमारे जब फ्लेक्स के केस में क्या हो रहा है, फ्लोट लेफ्ट लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो क्या हो रहा है, एक के बगल में एडजेसेंट में वो बन जा रहे हैं। ठीक है, और ये तो फिर वहां भी हम लोग 25 मतलब 50 और 100 पर चल रहे थे, यहाँ भी आपका है। तो इस टाइप से हम लोग, हमारे पास मल्टीपल मीन्स पॉइंट हो जाते हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्रॉपर बना सकते हैं डिजाइन को।
समझ में आ रहा है ना? अब देखिए अभी तक क्या हुआ, कंटेंट को हम क्या कर रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे, मतलब हम स्विच कर रहे थे कंटेंट को, नेविगेशन बार बनाए, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हमारा बना। बट अब अगर हम चाहते हैं कोई कंटेंट को कि वो हाइड हो जाए, इन द सेंस जब आप लैपटॉप व्यू पे जा रहे हैं तो कोई सपोज यहाँ पे मार्क्यू ही चल रहा है, मान लीजिए ये मार्क्यू चल रहा है, ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि ये लैपटॉप व्यू में दिखे बट मोबाइल व्यू में ये ना दिखे, ठीक है, मतलब क्या हुआ, हाइड एंड शो करना। तो हम उसे मीडिया क्वेरी के अनुसार से इजिली कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी इन द सेंस फ्लेक्स के हेल्प से भी कर सकते हैं और मीडिया के भी हेल्प से। मीन्स हम उसे क्या कर सकते हैं, कंटेंट कोई पर्टिकुलर कंप्लीट सेक्शन को ही हम हाइड एंड शो कर सकते हैं, ठीक है। हाइड करने के लिए क्या लेंगे, सीएसएस का प्रॉपर्टी क्या है हाइड एंड शो के लिए, Display none. डिस्प्ले नन कर देंगे। सीएसएस प्रॉपर्टी सेम है बट उसे हमें करना क्या होगा, अगर उसे हाइड करना है तो कैसे करेंगे, मीडिया क्वेरी लगा देंगे ना, और जब हमारा स्क्रीन Yes. साइज छोटा हो जाएगा, लाइक मिन बीट और मैक्स बीट जो हम लोग लेके चल रहे हैं, तो जैसे ही वो स्क्रीन साइज स्मॉल डिटेक्ट करेगा तो क्या होगा, वो सेक्शन हमारा हाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, इसमें क्या है, एक डिव ले रहे हैं जो एग्जाम्पल डिव हुआ, ठीक है, और इसी डिव सेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड या शो करेंगे। यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले मतलब नॉर्मली प्रॉपर्टी चला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो शो करेगा। बट जैसे ही स्मॉल स्क्रीन पे आया और मैक्स बिट क्या हो रहा है 600 पिक्सल, तो यहाँ डिस्प्ले क्या हुआ, नन। मीन्स इस कंप्लीट सीएसएस को, जो कंप्लीट सेलेक्टर का जो सीएसएस लगा हुआ है उसी सीएसएस को यहाँ पास किए, बट जिसका जरूरत है हम लोग उसी को पास कर रहे हैं। डिस्प्ले नन हमें मतलब था, हमें बैकग्राउंड कलर और ये सबसे हमें नहीं मतलब है। ये नहीं कि बैकग्राउंड कलर लगा दिए फिर उसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, पैडिंग को जीरो, कोई जरूरत नहीं है उतना करने का। अभी क्या हुआ, हमें डिव आ गया, चलिए इंस्पेक्ट करते हैं। दिख रहा है, अभी क्या हुआ, आपका कंटेंट दिख रहा है, और जैसे ही स्मॉल स्क्रीन हो रहा है वो कंटेंट क्या हुआ, हाइड हो गया। इन द सेंस क्या हो रहा है, हमारा ये पूरा डीप सेक्शन ही गायब हो जा रहा है, अगर यहाँ पे हम मार्क्यू लगा दें सपोज। ये सब टॉपिक देखिए बहुत ईजी है बट हमें थोड़ा समझना पड़ेगा सिर्फ उसे। अभी क्या हुआ, आपका मान लीजिए मार्क्यू चल रहा है, ठीक है, और जब हम स्मॉल स्क्रीन पे जाते हैं मार्क्यू हाइड हो गया, वो पूरा येलो कलर का जो सेक्शन था स्ट्रिप वो कंप्लीट हाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी सेक्शन को हाइड या शो कर सकते हैं। ये चीज एक्चुअली अगर आपको देखा जाए तो रियल सिनारियो में कहाँ आ रहा है जो बताता हूँ। ये नेविगेशन बार है, ठीक है ना, किन्हीं को शक तो नहीं है ना कि नेविगेशन बार है वो। अब जाइए आप स्मॉल स्क्रीन पे, क्या चीज यहाँ पे हाइड और शो हुआ, किन्हीं को कुछ पता चला। हम्म, सर ये हाइड वाली प्रॉपर्टी मैंने बैनर में यूज की है। ओके, यहाँ पे हाइड और शो का क्या मतलब पता चला, क्या चीज हाइड हुआ और क्या शो हुआ। बटन शो हुआ और नेविगेशन हाइड हो गया। ये नेविगेशन बार जो है यहाँ पे अभी आपको कोई आइकन नहीं दिख रहा है, मीन्स ये जो ट्रिपल लाइन का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आइकन आपको नॉर्मल में नहीं दिख रहा है, कहीं पे है क्या आइकन, वो ट्रिपल लाइन का जो है नहीं है। बट जब हम मोबाइल डिवाइस पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल आइकन आ रहा है, ये हो सकता है इमेज हो या सीएसएस के हेल्प से बना हुआ हो, देखते हैं वो है क्या एक्चुअली। बटन है, टॉगल नेविगेशन बार, आइकन बार, ये आइकन ही तो है।
ओके देखिए ये आपका CSS। ओके बोलो के तो नॉर्मल है ना। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पैन लिया गया जिसमें टॉगल नेविगेशन कुछ करके है, CSS लगा हुआ है। सेकेंड स्पैन में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आइकन बार, फिर आइकन बार, ये 3 बार स्ट्रिप लगा हुआ है ना, 3 लाइन है। तो वो 3 लाइन किसके हेल्प से आ रहा है, इस आइकन बार जो 3 बार लिखा हुआ है। समझ में आया। बट यही चीज जब हम नॉर्मल स्क्रीन पे जा रहे हैं, इन द सेंस नॉर्मल व्यू पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो हमारा हाइड मतलब नॉर्मल में हमें नहीं दिखता है। बट जब हम उसे स्मॉल स्क्रीन पे आते हैं तभी वो आपको दिख रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक, शायद इसी कारण कर रहा है, क्योंकि हमें ये नॉर्मल अभी दिख रहा है ना, तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया गया। जब यही आपका जाता है लैपटॉप व्यू में, वो गायब हो गया, वो इमेज ही नहीं है, तो डिस्प्ले आपका हिडन हो गया, या डिस्प्ले नन, जो भी जैसा भी रिक्वायरमेंट रहे उस टाइप से हम उसे हाइड कर दिए। समझ में आया। तो रियल टाइम में हम यूज कैसे करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को खास करके। चलिए तो ये कंटेंट क्या हुआ आपका, हाइड एंड शो में आपको हेल्प करेगा। सेकंड है चेंज द फॉन्ट साइज विथ मीडिया क्वेरी, सेम ये सब नॉर्मल वही चीज जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आपको फॉन्ट साइज को पास करना है तो क्या कर रहे हैं, मिन विड्थ मैक्स विड्थ ले लिए, उस पर हमने फॉन्ट साइज को लगा दिया, फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज हो गया। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी है, बट हमने ओवरव्यू पे हमने ओवरऑल क्या देखा कि कैसे हम किसी भी अभी जितना हम लोग डिस्कस किए हैं उसके हेल्प से, प्लस पहले जितना भी हमें CSS आता है उसके हेल्प से आप कोई भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मीन्स आपके अब अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है मीन्स कि एक वेबसाइट हम इसे कंप्लीटली अच्छे तरह से रेस्पॉन्सिव ना डिजाइन होगा, क्योंकि हम लोग ने हर एक चीज को देखा। ये जो ब्लू कलर आ रहा है ये किसके हेल्प से आ रहा है, कौन सा CSS है, इन्हीं को याद है। ये Selection. सिलेक्शन सेलेक्टर के हेल्प से। समझ में आ रहा है सबका क्या हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का और है बस, फिर तो जावा स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्स। फ्लेक्स बहुत बड़ा तो नहीं है, प्रॉपर्टी